So parents, we will be starting and commencing today a series in which you will be getting the parenting tips. This series is exclusively for parents, in which we will be talking every time we'll be having an eminent. We feel very much obliged that we have very senior and very reputed nutritionist, dietitian of the city, Dr. Amita Singh. Let me introduce her as she's there with us today. Dr. Amita Singh is a nutritionist, as I said, dietitian, an author, article writer, member of NGOs, gives her talks in radios and TVs, and lot many things. She started her career job, I can say. So today's eminent speaker is now going to talk to the parents. Ma'am, the stage is all yours now. We welcome you from all the parents' side. Dr. Amita Singh, talking to World Way International School parents. Over to ma'am. Thank you for your kind words, Poonam. मैं एक बात यहाँ पर सबको क्लियरली बता देना चाहती हूँ. जो कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, this is the amalgamation of all the international as well as national webinars which we have been attending as professionals, which have identified the factors which are contributing to good immunity in people. So, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये specifically these are regarding COVID itself. They are from across the globe, US, China, Spain. So, what are the issues which have been identified by खाओ एक बिकुसुल का कैप्सूल खा लो, उससे नहीं चलेगा. So, let's get down to क्या चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं जिनकी इंडियंस में स्पेसिफिकली कमी देखी गई है, जिससे इम्पैक्ट हो रहा है उनकी रिकवरी में. सो पहले मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगी और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कैसे करना है इसकी मैं बात करने वाली हूँ. न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट जिसके ऊपर सबको फोकस करना है, क्योंकि याद रखिए अभी तो आप घर पे हैं, शायद अब कुछ लोग पार्शियली बाहर जाना शुरू हो गए हैं, अभी तो आप घर पे हैं. जब कंप्लीट लॉकडाउन खुलेगा, जब सबको बच्चों को स्कूल जाना होगा, आपको सबको कम्युनिटी में जाना होगा, उस टाइम पे आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग लेके ही बाहर निकलना है. उसके लिए ये टाइम है आपको वर्क करना है फ्रॉम राइट नाउ. Having said that, let's look at the nutrients first, and then the other non-nutritional factors which have a major impact on immunity. So, the nutrients are first and foremost is protein. Indians have been found to be very, very low in protein. Protein powders are not the answer. I'll be talking about what is the quantity of various food groups which you have to take to fulfill that requirement and how to do it within the limitations which you may be having currently. Protein is the first thing, everything, your immunity, your children's building block, your own repair of the body, everything is dependent on protein, and we are woefully low. We barely take in 30 to 40 grams, when a woman should be having at least 55 grams and a male should be having at least 65 grams. Body mein, there are no stores for protein. It has to be taken on a daily basis. Together with that, we have this micronutrient called zinc. इसका बहुत wide role है. It has been known to help in recovery, in the cellular processes.
innumerable. I'm not going to go into the physiological details there. Together with that is the vitamin C, which you all know is it's known to have a very strong impact on the immunity of a person. Vitamin D and another two vitamins, vitamin B6 जिसे folic acid कहते हैं और B12, ये दोनों खासकर खून बनाने के लिए बहुत important है, because if your blood is healthy, then only the medication. Having said this, let us look at the other factors which have been identified as major components of improving the immunity. One is adequate regulated sleep, which means कि अगर अभी छुट्टियों में आदत पड़ गई है कि रात को देर तक मूवी देखना, नेट पे वर्क करना, नेट के साथ कनेक्टेड रहना और सुबह फिर 10-11 बजे उठना, please change it right now, because your body repairs itself during the night, and अगर आप इस चीज को नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके रात को नींद जल्दी आने लगेगी. And this is very important. That is why I am talking about it even before I talk about nutrition. Second thing, hydration. पानी. अंदर है, एसी चल रहे हैं, हम लोग शायद पानी भी ना पिए पूरा. Please make sure 2 liters of water is mandatory for everybody. और पानी में आप चाय, कॉफी और ये रूह अफ़ज़ा, juices, इनको नहीं गिनेंगे. These are not a part of the water. You can count जलजीरा, पना है, कुछ लोग इमली का शरबत टाइप का बनाते हैं, that is fine. आप नींबू पानी लीजिए, छाछ लीजिए और सादा पानी लीजिए. पानी में प्यास लगने का वेट मत करिएगा प्लीज. That was the second very important point. Let's come to the nutrition now. The first component, and that is protein. How do we fulfill that requirement? Across the ages, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, सब बच्चे 3 साल से तो ऊपर के होंगे ही, राइट? और आप लोग सब एडल्ट्स हैं एज पेरेंट्स. एक एक व्यक्ति के हिसाब से 500 ml मिल्क का पर डे यूज होना चाहिए. वो चाहे दही हो, छाछ हो, घर में है बच्चे, कस्टर्ड बनाइए, खीर बनाइए, कुछ भी करिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन. Why? Because जो विटामिन B12 है जिसकी मैंने आपको बात बताई है, वो विटामिन वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ मिल्क से ही मिलेगा, कर्ड से ही मिलेगा, खीर से ही मिलेगा. सो प्लीज मेक श्योर कि चाहे आप मैंगो शेक दें, चाहे बनाना शेक दें, चाहे आप कोई भी पुडिंग बना के दें, but 500 ml of milk per person, and I'm talking to the ladies as well, please make sure you have this much. It's not only important for your protein and immunity, it is also important for your bones, for your muscle strength. Also कम लोग जानते हैं कि मिल्क का कैल्शियम आपकी एब्डोमिनल गर्ल, पेट के को कम करने में it's been identified that the milk fat has the capacity to improve that. एक ये बात हो गई. दूसरी बात, दालें, पल्सेस. नॉनवेज बहुत कम लोग खा रहे हैं. नेचुरली एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा ये भी बात है कि अगर अवेलेबल हो भी तो हमें डर सा लगा रहता है. अच्छे टाइम पे अपने यहाँ नॉनवेज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहता है. साबुत दालें होती हैं,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स हेल्दी पर्सन को लेने के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो फिश कैप्सूल्स हो चाहे कोई भी हो। आप अगर साबुत दालें लेते हैं देन इन दैट केस आपका ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और सब बच्चे राजमा, छोले, चना बड़े शौक से खाते हैं, और आप उनको वैसा ही बनाइए जैसा मसालेदार घर पे पसंद है। इसकी बात मसालों की मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ। हैविंग सेड दैट, कितनी चाहिए? ग्रोइंग बच्चे हैं, यंग मैन, जैसा मुझे एक रेडमी दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, यंग मैन जो है उनको तो दिन में 2 से 3 कटोरी लेने चाहिए। गर्ल्स एंड विमेन कैन डू विद 2 कटोरीज, 1 फॉर लंच एंड 1 फॉर डिनर। मुझे पता है यहाँ क्या शिकायत आने वाली है कि बच्चे खाते नहीं है। मेरे पास उसका जवाब है आपके लिए, बहुत सिंपल जवाब है। बेसन सब जगह मिल रहा है, दुकानों में अभी भी मिल रहा है। आप 1 किलो बेसन में 3 किलो गेहूं का आटा मिला के रख दीजिए। ओके, सो 1 किलो बेसन, 3 किलो गेहूं का आटा। अगर सब चने का आटा खा लें तो फिर तो चना और गेहूं कर लीजिएगा, अदरवाइज बेसन और गेहूं कर दीजिए। प्रोटीन बढ़ाने का एक और ट्रिक बता देती हूँ। इस आटे को गूंदते टाइम आप दूध में गूंदना शुरू कर दीजिए। आपके वही रोटी, पराठा, पूरी, everything will have not only A class protein, it will have B12, it will have calcium, and while kneading the आटा, या अगर आपकी घर की हाउस हेल्प आनी शुरू हो गई है तो उसके साथ भी मिल्क का यूज करिए। रिजल्ट विल बी a phenomenal dense chapati and parathas which you are serving. इसी के साथ जिंक वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। उनमें से कोई भी चीज पर डे हर एक कोई ले तो बहुत अच्छा होगा। वैसे ये है कि अगर आप लोग कॉम्बिनेशन में कुछ कर सके तो बहुत अच्छा है। आई वुड रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली कि इस टाइम पे अगर आपको सनफ्लावर सीड, तिल, अलसी के बीज, खरबूज और तरबूजे के बीच में, तरबूज के बीज मिल जाए, इन्हें खरीदिए और इनको रोस्ट करके और मिक्स करके रख लीजिए। You can, these are neutral, you know, in taste. They don't have any specific taste as such. They are neutral. अगर आप उसको पल्वराइज कर लेते हैं, मिक्सी में पाउडर बना लेते हैं, ठंडाई की तरह से आप दूध में भी डाल के दे सकते हैं with a little bit of vanilla essence, ways in which you can take it। और वैसे तो इन पे हल्का सा सॉल्ट डालिए, वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। I would recommend 2 teaspoons per day for everyone. So अगर पाउडर भी कर लेते हैं या कैसे भी, जस्ट पाउडर किया हुआ 1 चम्मच ही भरा हुआ बहुत हो जाता है, बिल्कुल कम हो, वो sort of कम हो जाता है। मैंने महिला बाल विकास के साथ एक कभी काम किया है, बिकॉज प्रॉब्लम ये आ रही है, आपको पता है एनीमिया हमारी कंट्री में रैम्पेट है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? समथिंग ड्राई, सूखी चीज जो मेरे को ये बोला गया अमिता मैम, जिससे प्रोटीन भी मिले, आयरन भी मिले, सब कुछ मिल जाए, तो वो मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ, जिसको मैंने अभी ही वो किया है। शॉप्स खुल गई हैं तो आपको, या आपके घर पे भी होगा, आपको हैरानी होगी कि भुने चने और मुरमुरा और पोहा, ये तीनों चीजें, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ आयरन। और जब आप भुने चने और मुरमुरे को इकट्ठे लेते हैं तो प्रोटीन क्वालिटी इज एज गुड as the protein of your egg या non-veg या milk. So हाँ, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है,
वो मैं आपको भी बताऊंगी। तो आप ये मिक्सचर बना के रख लो, कभी इसको भेल के फॉर्म में, कभी वैसे ही और किसी चीज के साथ, मूंगफली हो गई, बादाम वगैरह हो गए, उसके साथ मिक्स करके आप यूज करिए। अगर फीका रखा हुआ है फिर तो आप इसको पीस के इसके, तो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने खोल दिया है कि हर एक घर में एक समय का खाना लोहे की कढ़ाई में बनना चाहिए। लोहे की कढ़ाई में खाना बनने से आयरन फूड में आता है, लीच आउट होता है, जैसे एल्यूमिनियम भी होता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं प्लीज एल्यूमिनियम में खाना मत बनाइए। वो आयरन लीच आउट होगा आपके खाने में। खाने के साथ सिर्फ एक ही बात करनी है कि विटामिन सी की कोई चीज खानी है। आंवला है तो भी चल जाएगा, हरी मिर्च है तो भी चल जाएगी, कोई हरी चटनी बनाई है तो भी चल जाएगी, कच्चा टमाटर भी चल जाएगा, एनी ऑफ दीज थिंग्स। सिर्फ आंवला है जिसका मुरब्बा भी चल जाएगा या अचार भी चल जाएगा, बाकी चीजें फ्रेश चाहिए। बहुत सिंपल है अपनी डाइट में आयरन, प्रोटीन, क्रोमियम, जिंक, इन सब चीजों को जोड़ना। उसको रुचिकर कैसे बनाना है ना, मैंने जैसे कहा कि अनाज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ये बहुत जल्दी ऊर्जा देता है, और बैठे बैठे चिप्स खा लेना, अगर आपने भेल बना दी तो उसी को मुट्ठी भर भर के खा लेना, या मतलब एक्स्ट्रा रोटी खा लेना, घर में टोस्ट ब्रेड पड़ी है चलो टोस्ट करके ही उसको खा ले, ये बहुत कॉमनाइज विद दिस। यू वांट टू रिड्यूस वेट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि आप एनर्जी उतनी यूज नहीं करते। स्टैंड्स टू रीजन, जब आप एनर्जी उतनी यूज नहीं कर रहे तो एनर्जी गिविंग फूड्स जो है उनको कम करिए। द पॉइंट इज एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या आता है। एनर्जी गिविंग फूड में एक तो अनाज आता है, ऑल्सो तेल, घी, मक्खन आता है, शक्कर आता है। बच्चों के साथ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आप भी शेयर करिए, वो भी शेयर करें। Last, before I leave this thing open to you all, is हमारे जो मसाले हैं, half a teaspoon of हल्दी। प्लीज रिमेंबर, किसी भी व्यक्ति को एक टाइम पे 1 चम्मच से ज्यादा हल्दी नहीं लेनी है, मतलब सिर्फ हल्दी पानी में घोल के या किसी चीज में घोल के, not more than 1 teaspoon. It can cause gastric ulceration, especially when taken in water. So 1/2 to 3/4 teaspoon of haldi with a pinch of black pepper, काली मिर्च का पाउडर उसके साथ में, क्योंकि उससे curcumin की absorption improves many hundreds of times. So वो आप warm water में सुबह भी ले सकते हैं, आप रात को दूध में भी ले सकते हैं। Curcumin is validated scientifically as one of the strongest immune enhancers. एक ये बात हो गई। दूसरी बात, हमारे लहसुन, अदरक रखे भी जा सकते हैं, मिल भी रहे हैं, भरपूर यूज करिए, यूज इन प्लेंटी। इसकी चटनियां बनाइए, सूप में डालिए, शेक में क्रश करके डाल दीजिए अलग ट्विस्ट के लिए। केक बना रहे हैं तो उसमें आधा आटा और आधा मैदा कर दीजिए, उसमें जिंजर ग्रेट कर दीजिए। जिंजर ब्रेड खाने जाते हैं, जिंजर की कितनी चीजें वैसे खाने जाते हैं, उसमें कर दीजिए। दिस इज नोन टू हेल्प इन the improvement of the respiratory function. So you can do that. And of course, लहसुन, पर प्लीज सुबह सुबह खाली पेट लहसुन लेने